دین محمد نے ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ کی آستین کو شانے تک اٹھا کے دیکھا۔ شانے سے ذرا نیچے 3 ننھے ننھے نشان نظر آ رہے تھے۔ اس نے بازو کو دوسرے ہاتھ سے تھوڑا سا دبا کے اقرار میں سر ہلایا۔ ممکن ہے اسی شخص نے یہ کام بھی کیا ہو جو پہرے داری کے بہانے گھر کی نگرانی پر مامور تھا۔ مارفیا، پیتھیڈین یا ڈائزیپام کا ہیوی ڈوز دینا کوئی مشکل کام نہیں، یہ چیزیں عام دستیاب ہیں، شیخ نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا قابل فخر ریکارڈ خراب ہو گیا دین محمد۔ تم پر چارج تو بنے گا، ایک غفلت برتنے کا، دوسرا وہ اسلحہ گم کرنے کا جو تمہیں خصوصی اجازت کے تحت دیا گیا ہوگا۔ تم معطل بھی ہو جاؤ گے لیکن میرا خیال ہے بحال بھی ہو جاؤ گے۔ کیسی عجیب اور خطرناک بات ہے شیخ کہ رضوی صاحب تک مطمئن تھے، میں نے کہا، اور وہ بدماش پاسبان نہیں، دشمن جان تھا۔ آج مجھے خیال آیا تھا کہ سنتری اس طرح ڈیوٹی چھوڑ کے جانے کی حماقت اور جرات نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ گھر کی بات دشمنوں تک اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ کل رات ہی محسن کے والد کا فون آیا تھا اور انہوں نے صبح ہم سے بات کی۔ اس سے پہلے اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا اور اس پروگرام کی فوراً دشمنوں کو خبر مل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کیسے، کیا انہوں نے گھر کے اندر کوئی خفیہ مائکرو فون چھپا رکھا ہے اور کہیں آس پاس ہی بیٹھے سب گفتگو سن رہے ہیں؟ اب بات سمجھ میں آتی ہے، یا تو وہ بدماش جو گیٹ پر محافظ بنا کھڑا تھا کسی کھڑکی کے دروازے سے کان لگائے ساری باتیں سن سکتا تھا، مگر اس میں پکڑے جانے کا بہت خطرہ تھا۔ رضوی صاحب یا گھر کا کوئی فرد اچانک باہر آ جاتا تو اسے دیکھ لیتا۔ چنانچہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا ٹرانسمیٹر مائکروفون گھر کے اندر تھا اور ریسیور اس کی جیب میں۔ ظاہر ہے اس کی رینج بہت کم ہوتی ہے، انہیں آس پاس کوئی جگہ نہ ملی۔ نہیں سکندر، بات جگہ کی نہیں، شیخ نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ اور بتانا چاہتے تھے، یہ کہ تم لاکھ ایس پی کی کوٹھی میں قلعہ بند ہو کے بیٹھ جاؤ اور دروازوں پر محافظ بٹھا دو، ہماری پہنچ سے باہر نہیں، ہم جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ غور کرو کہ ان کے ہاتھ میں مشین گن تھی، وہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ وہ گھر کو اڑا دیتے یا سب کو لے جاتے، مگر وہ صرف ایک فائل لے گئے اور کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ گئے کہ ہم بلا وجہ کشت و خون نہیں کرتے اور تمہیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہماری طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے مقابلے کا خیال چھوڑ دو۔ شیخ کے مشورے پر میں نے رضوی صاحب کو اطلاع دیے بغیر رپورٹ درج کروانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی ڈیوٹی شروع ہونے والی تھی، وہ رخصت ہو گیا تو میں نے طے کیا کہ رپورٹ بھی 8 بجے کے بعد لکھواؤں، جب حشمت خان کی جگہ خود اکرام شیخ آ جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں دین محمد سے بات کرتا رہا۔ وہ پرانا سپاہی تھا، وہ مجھے اپنی بہادری کے پرانے کارنامے سناتا رہا جن پر اسے تعریفی اسناد ملی تھی اور میڈل ملے تھے۔ ساری بات یہ ہے کہ موت نہ وقت مقررہ سے پہلے آتی ہے نہ اس کے بعد۔ جب یہ وقت آتا ہے تو وہ عورت جو مفلوج ہو اور گھر کے اندر بستر پر لیٹی ہو اور بالکل نہ جانتی ہو کہ دنیا میں کوئی اس کا دشمن بھی ہے، جو تصور بھی نہ کر سکتی ہو کہ اس کی موت طبعی نہیں ہوگی اور قتل کو ایسا فعل سمجھتی ہو جو انسان نہیں کر سکتے، خود قتل ہو جاتی ہے۔ ورنہ دین محمد جیسے لوگ خطرناک ترین مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، آتشی اسلحے کی جنگ میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، میڈل اور اسناد پانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور انہیں خراش تک نہیں آتی۔ رات کو میں اسے رابعہ کی گاڑی میں بٹھا کے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گیا۔ حشمت خان چارج دے چکا تھا اور محض اپنا فلسفہ حیات اور ملازمت کے ذریعے اصول سمجھا کے شیخ کا وقت ضائع کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ چونکنے کا اصل سبب میرے ساتھ دین محمد کا آنا تھا۔ دین محمد پولیس سے CIA میں گیا تھا اور پرانا افسر تھا، چنانچہ حشمت خان بھی اس کو پہچانتا تھا۔ پہلا نظریہ اس نے یہی قائم کیا ہوگا کہ میرے جیسے خطرناک مجرم کا کیس اب CIA نے لے لیا ہے، مگر رپورٹ کی بات سن کے اسے مایوسی ہوئی۔ دین محمد اب میری قمیض اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ آپ میری مانے تو گھوڑے شاہ کے مزار پر کوئی منت مانے، اس نے درمیان میں موقع پا کے کہا۔ آپ کے سارے گھر پر کسی کا منحوس سایہ ہے۔ اس نے بڑے معنی خیز طریقے سے میری طرف دیکھا۔ سارے گھر کا کیا مطلب؟ دین محمد نے ناگواری سے کہا۔ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ وہ تو ہے جی، مگر ذرا غور کریں نا، ایک ہی وقت میں آپ اور آپ کے بھائی دونوں۔ اس نے عمدن جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ پوری بات کیوں نہیں کرتے؟ دین محمد نے کہا۔ کیا ہوا ہے میر محمد کو؟ چونکنے کی باری اب میری تھی۔ میر محمد بھائی ہے تمہارا سگا؟ اور کیا ستیلا، آپ بھی کمال کرتے ہیں سکندر صاحب۔ اب دیکھیں نا، کل سے اس کا بھی پتہ نہیں۔ حشمت خان بولا۔ کیا پتہ نہیں؟ دین محمد نے برہمی سے کہا۔ اس کا گھر تو یہی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، حشمت خان نے کہا۔
इनको कल मेरे साथ अदालत जाना था, लेकिन इनका एक पैगाम मिला मुझे कि वो नहीं जा सकते और ये काम मैं करूं। कोर्ट तो मैं चला गया, लेकिन मैंने अपने शक का बहरहाल इजहार कर दिया था क्योंकि तहरीर मीर मोहम्मद की नहीं थी। इसकी बीवी भी बहुत परेशान है। ऐसे बताए बगैर वो पहले कभी नहीं गया। दीन मोहम्मद उठ खड़ा हुआ। मैं भाभी से पूछता हूँ। मैं और शेख इसके पीछे गए, लेकिन हशमत खान वहीं बैठा रहा। मीर मोहम्मद का घर थाने से मुल्हिक अहाते में था, जहां अमले की रहाइश के लिए फ्लैट बने हुए थे। वो ब्लॉक मातहत अमले के लिए थे और ये छोटे क्वार्टर थे। मीर मोहम्मद 3 कमरों वाले फ्लैट में था और इसका फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। दीन मोहम्मद ने दस्तक दी और दरवाजा खुलते ही अंदर दाखिल हो गया। फिर हमने इसके चिल्लाने की आवाज सुनी और इजाजत लिए बगैर अंदर घुस गए। अंदर दीन मोहम्मद दीवानावार एक से दूसरे कमरे में जा रहा था। दोनों कमरों की हालत नाकाबिले बयान हद तक अबतर थी। घर का सारा सामान कबाड़ी की दुकान की तरह बिखरा पड़ा था। सारे संदूकों को उल्ट कर खाली कर दिया गया था। अब खाली संदूक अलग पड़े थे और इनका सामान फर्श पर फैला हुआ था। यही कैफियत अलमारियों की थी। इनमें से हर चीज निकाल के बाहर डाल दी गई थी। तलाशी लेने वालों के लिए मुमकिन होता तो वो दीवारों को भी उधेड़ देते, क्योंकि उन्होंने कोई चीज सलामत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तकिए, लिहाफ, बिस्तर सब फाड़ दिए थे। एक सोफा सेट का कवर खंजर जैसी किसी चीज से यूं फाड़ा गया था कि सिर्फ अंदर के स्प्रिंग रह गए थे। उन्होंने दरमियान में भरी हुई जोट तक निकाल फेंकी थी। मीर मोहम्मद की बीवी कहाँ है? शेख ने हर तरफ झांक कर तबाही बर्बादी का मुकम्मल जायजा लेने के बाद कहा। मुझे क्या मालूम, मैं भी तुम्हारे सामने ही तो आया हूँ। दीन मोहम्मद ने कहा। देखा नहीं था क्या? तुम्हारी दस्तक पर दरवाजा किसने खोला था? शेख ने मेरी तरफ देखा। किसी ने भी नहीं। जब मैंने दस्तक दी थी तो दरवाजा थोड़ा सा पीछे हो गया था। दीन मोहम्मद ने कहा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, मैं अंदर चला गया। शायद सामने के फ्लैट वाले पड़ोसी को कुछ मालूम हो। शेख ने कहा। बाहर झांकने पर मुझे सामने का दरवाजा मुकफ्फिल नजर आया। नीचे रहने वालों को कुछ मालूम नहीं था। हर मंजिल पर 2 फ्लैट थे जिनके दरवाजे जीने में आमने सामने खुलते थे। चुनाचे मीर मोहम्मद की बीवी का मेल मिलाप ज्यादातर तीसरी मंजिल के दूसरे मकीनों के साथ था, मगर इसमें रहने वाला ASI तब्दील होकर मुल्तान चला गया था और तब से वो फ्लैट खाली पड़ा था। तीसरी मंजिल पर मीर मोहम्मद अकेला था। दीन मोहम्मद और इकराम शेख ने मुझे फ्लैट में ही छोड़ा और ऊपर चले गए। ऊपर किसी दूसरे थाने के 2 इंस्पेक्टर रहते थे। वो अपने अपने घर में टीवी देख रहे थे। चुनाचे इनके कानों ने भी कोई गैर मामूली आवाज नहीं सुनी थी। किसी को ये भी मालूम नहीं था कि मीर मोहम्मद गायब है। 10 मिनट बाद वो दोनों लौट आए। अभी कल मेरी इससे बात हुई थी। दीन मोहम्मद ने कहा। कल बात हुई थी तुम्हारी? शेख ने चौंक कर कहा। किस वक्त? सुबह 10 सवा 10 बजे। सही वक्त तो मैंने नोट नहीं किया था, मैं ड्यूटी के बाद थाने गया था। दीन मोहम्मद बोला। और तुम्हारा भाई वहाँ मौजूद था? शेख ने कहा। क्या बात हुई थी इससे? इसने फोन किया था। दीन मोहम्मद ने कहा। कहाँ से? इसके घर में तो फोन है नहीं और थाने में वो आया नहीं। शेख ने कहा। ये मैंने नहीं पूछा था कि वो कहाँ से बोल रहा है। मेरा ख्याल था कि थाने से ही बात कर रहा होगा। दीन मोहम्मद बोला। और तुमने अपने थाने पहुंचकर फोन रिसीव किया था? शेख ने कहा। हाँ, मुझे ड्यूटी के बाद घर जाने से पहले SP साहब को रिपोर्ट देनी पड़ती है। अभी मैंने रिपोर्ट नहीं दी थी। साहब के पास कुछ लोग बैठे थे। इतनी देर में एक इंस्पेक्टर ने आवाज देकर मुझे बुलाया और कहा मीर मोहम्मद का फोन है। गोया मीर मोहम्मद को मालूम था कि तुम इस वक्त ड्यूटी खत्म करके थाने पहुंच गए होगे। शेख ने कहा। ये नतीजा आप निकाल रहे हैं? दीन मोहम्मद ने कहा। मीर मोहम्मद को मैंने अपनी ड्यूटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। हमें जब भी बात करनी होती थी अपने अपने थाने से फोन कर लेते थे। इसमें कोई गैर मामूली या नई बात नहीं थी। अच्छा, कल कोई खास बात कही थी इसने? शेख ने कहा। देखें जी, वैसे तो वो भाई था मेरा, मुझसे छोटा था। दीन मोहम्मद ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। लेकिन इसकी और मेरी तबीयत में बहुत फर्क था। इसे पैसे की हवस थी। पैसे की खातिर वो बहुत से गलत काम भी करता था। गलत काम तो सभी करते हैं, मगर अपना दामन बचा के। जमाना बड़ा खराब आ गया है। एक सब्जी फरोश के वारिस भी हाई कोर्ट जा पहुंचते हैं, वकील कर लेते हैं और पुलिस को अदालत में घसीट लेते हैं। पैसा आ गया है सबके हाथ में और वकील साहब को सिर्फ पैसा चाहिए। एक बार इसने किसी ट्रक ड्राइवर के हाथ मार दिया था। GT रोड पर सारी ट्रैफिक रुक गई। ट्रक वालों के साथ बस वाले शामिल हो गए और उन्होंने सड़क बंद कर दी। SDM और कमिश्नर साहब को मामला रफा दफा करना पड़ा। मैं इसको बहुत समझाता रहा कि देख, हद से ना बढ़, तेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आए दिन शिकायत मौसूल होती हैं,
मगर इसे परवाह नहीं थी। इसने इतना पैसा जमा कर लिया था कि वो किसी की परवाह नहीं करता था। बीवी के नाम से गुलबर्ग की एक 2 मंजिला कोठी 2 साल पहले खरीदी थी। एक किनाल की कोठी है, इसके दोनों हिस्से किराए पर उठा रखे थे। दूसरी अभी बेटे के नाम से ली थी। खासी ज़रई जमीन भी थी साहिवाल की तरफ। किन्नौ माल्टे के एक बाग से ही 50,000 सालाना मिलते थे, लेकिन इसमें कनात नहीं थी। बीवी भी रोती थी और मुझसे कहती थी, भैया जी आप ही समझाएं इन्हें, मेरी तो एक नहीं सुनते। इतना लालच ठीक नहीं, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। क्या फायदा इन कोठियों का और इस पैसे का जिनका मालिक जेल में पड़ा हो। हमें इतना बहुत है। वो उल्टा बीवी पर गर्म होता था कि कैसी औरत है, जो कुछ मैं करता हूँ इसके भले के लिए, बच्चों के भले के लिए करता हूँ। जिस रोज ऐसी वैसी बात का खतरा होगा मैं इस्तीफा मुंह पर मार दूंगा। क्या मैं इस मामूली सी पेंशन की रकम के लिए नौकरी कर रहा हूँ, जिससे मेरा महीने का सिगरेट खर्च भी पूरा नहीं होता। मैं जब चाहूँ अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ और जितनी तनख्वाह अब सरकार के खजाने से ले रहा हूँ उससे ज्यादा तनख्वाह पर सेल्समैन मुलाजिम रख सकता हूँ। ये तो मैं समझ गया। शेख ने बड़ी एहतियात से इसको टोका। कल क्या बात हुई थी? कल दीन मोहम्मद ने कहा। वो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार था। एक बात ऐसी थी काबिले जिक्र। इसने कहा था, भैया जी बस अब नौकरी से छुट्टी। मैंने कहा क्या मतलब, इस्तीफा दे दिया है क्या? इसने कहा बस दे दूंगा आजकल में, बहुत कर ली सबकी गुलामी। मैं पहले तो यही समझा कि जिस बात से मैं डरता था वही ना हुई हो। मैंने कहा कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताओ। वो हंसने लगा, बोला भैया जी आप तो हमेशा डरते ही रहे, बात क्या होनी है, बस जी भर गया है अपना। मैंने कहा फिर भी कोई बात तो ऐसी होगी कि आज तुमने अचानक फैसला कर लिया। वो बोला हाँ एक बड़ा सौदा किया है, लाखों का, बड़ी पार्टी है। 5 लाख देते थे, मैंने 10 पर मजबूर कर दिया। मेरे बहुत पूछने पर इसने सौदे की नोयत नहीं बताई और पार्टी का नाम नहीं लिया। एक बात मैं इससे कहना चाहता था मगर नहीं कह सका कि 10 लाख देने वाले मामूली लोग नहीं होते, इनसे बहुत मोहतात रहना चाहिए। वो 9 लाख बचाने का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। 1 लाख देकर किसी को तुम्हारा पत्ता साफ करने के लिए भेज सकते हैं। इस शहर में ऐसे बहुत हैं जो 1 लाख की खातिर अपने भाई के कत्ल से गुरेज ना करें। वो जरा सी देर के लिए रुका। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदेशे गलत नहीं थे। ये मामला तफ्तीश तलब है, शेख ने कहा, लेकिन पहले ये मालूम करो कि इसके बीवी बच्चे कहाँ हैं। मेरा मतलब है कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं गए हुए हैं। दीन मोहम्मद ने नफी में सर हिलाया। इसकी बीवी की मेरी बीवी से कभी नहीं बनी, हालांकि दोनों सगी बहनें हैं। इस इख्तिलाफ की वजह, शेख ने कहा, औरत जात की फितरत। दीन मोहम्मद ने तल्खी से कहा, सगी बहनें 2 घरों में जाके एक दूसरे की भावज बन जाती हैं तो बचपन के रिश्ते को फरामोश कर देती हैं। ये देखने लगती हैं कि दूसरी बहन के घर में क्या है और मेरे घर में क्या नहीं है। हसद की कोई इंतहा नहीं, सारा कसूर मेरी बीवी का है। हर वक्त रोती रहती थी कि अपने भाई के घर को देखो और अपने घर को देखो। मेरी तो किस्मत फूट गई आपसे शादी करके। वो छोटी बहन है और इसके घर में हर चीज है। यहाँ धूल उड़ रही है, वो ऐश कर रही है और मैं अपने नसीब को रो रही हूँ। हालांकि मीर मोहम्मद की बीवी अपने शोहर की कमाई से खुश नहीं थी। वो मेरे सामने रोती थी कि मुझे ये मनहूस कमाई और ऐसी भलाई नहीं चाहिए। मामला बिल्कुल उल्टा था। जिसे सब मुयस्सर था वो कहती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मालूम नहीं वो मेरी बीवी होती तो क्या कहती। शायद वही जो अब मेरी बीवी कहती है। औरत को ना गुर्बत रास आती है ना दौलत। बस इसी बात पर इनकी ऐसी अनबन थी कि एक दूसरे से बात तक करने की रवादार ना थी। मुमकिन है वो मैके गई हो, शेख ने कहा। दीन मोहम्मद ने फिर नफी में सर हिलाया। दोनों का मैका एक था, अब नहीं है। माँ बाप मर गए, भाइयों ने मकान बेचकर पैसा बांट लिया। एक दुबई चला गया, दूसरा कराची गया था, मालूम नहीं अब कहाँ है। तुम्हें इनके मिलने जुलने वालों के मुतल्लिक कुछ मालूम है? शेख ने कहा। शेख साहब इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। दीन मोहम्मद ने अपनी कलाई की तरफ देखा, लेकिन इसे बेहोश करने वाले उसकी घड़ी भी उतार ले गए थे। जिस औरत का शोहर 2 दिन से गायब हो वो कहाँ जाएगी अपने दोनों बच्चों के साथ? शायद वो यही मालूम करने निकली हो। इसे मालूम होगा कि मीर मोहम्मद कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, शेख ने कहा। ये मालूम करने के लिए उसे खुद धक्के खाने की जरूरत नहीं थी। वो थाने में कहलवा सकती थी कि फला फला जगह पर जाके देखो। दीन मोहम्मद ने कहा। वो खुद घर पर इंतजार करती। अगर वो कुछ देर में आ जाती है तो ठीक है, शेख ने कहा, वरना हमें ये फर्ज करना पड़ेगा कि मीर मोहम्मद की बीवी भी गायब है और वो खैरियत से नहीं है।
9 लाख बचाने वालों ने घाटे का सौदा नहीं किया है। शायद इंतखाब दोनों ने मीर मोहम्मद पर छोड़ दिया होगा कि बीवी बच्चों की जिंदगी और 10 लाख में से जो कबूल है रख लो। दीन मोहम्मद ने अफसुर्दगी से सर हिलाया। सोच तो मैं भी यही रहा था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी ये बात कहने की। हकायक का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए दीन मोहम्मद, शेख ने कहा। खुदा करे कि ऐसा ना हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये सब किसी ने क्यों किया होगा, किस चीज की तलाश थी उन्हें। मैं बहुत देर से खामोश था और ये सोच रहा था कि मीर मोहम्मद किस पार्टी को 5 लाख की बजाय 10 लाख देने पर मजबूर करने में कामयाब हो गया था। वो क्या चीज थी जिसके बदले को इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार था। मेरी समझ में एक ही जवाब आता था। मीर मोहम्मद ने चौधरी दिलावर एंड कंपनी से टेप रिकॉर्डर के एक स्पूल का सौदा करने की कोशिश की होगी जो इसने टेप रिकॉर्डर में से निकाल लिया था और गायब कर दिया था। इस पर अब्दुल का वो इतराफ़े जुर्म इसकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड हुआ था जो इसने मरने से कबल किया था। शेख ने फोन को टेप रिकॉर्डर से जोड़कर अब्दुल की आवाज को महफूज कर लिया था। इसने मुझे बताया था कि जब अब्दुल का फोन आया था तो थाने में एक टेप रिकॉर्डर मौजूद था, ग्रैंडिक का मॉडल 47T के, जो टेलीफोन के पैगामात खुद ब खुद रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जब वो अब्दुल के कत्ल की इब्तदाई तफ्तीश करके लौटा तो ये टेप रिकॉर्डर मौजूद नहीं था जिसके पैगाम को एक मुहर्रिर ने कागज पर नकल किया था। अब वो मुहर्रिर भी नहीं था, लेकिन मुहर्रिर ने बताया था कि टेप को मीर मोहम्मद ने हशमत खान की मौजूदगी में निकाला था। मुहर्रिर और टेप की अदम मौजूदगी में अब्दुल और शीदे के कत्ल का इल्जाम मुझ पर आता था। मीर मोहम्मद पहले से चौधरी दिलावर एंड कंपनी से मिला हुआ था। इसने मुझे गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि साहब चाहते हैं तुम मीर शराफत अली के कत्ल का इतराफ कर लो। मैंने असल कातिल यानी मुंदरी वाले उस्ताद पेड्रो को थाने में इसके पास आते देखा था, मगर वो साफ मुकर गया था। अब तो ये भी साबित हो गया था कि वो जाली ASP सिराज था जो कोई जेल साज था। इन सब बातों को जहन में रखते हुए मैं तसव्वुर कर सकता था कि मीर मोहम्मद ने इस टेप स्पूल का सौदा करने की कोशिश की होगी। इसने चौधरी दिलावर या उनके किसी साथी से कहा होगा कि मेरे पास वो चीज है जो तुम्हारे दुश्मन को सीधा तख्ता-ए-दार तक पहुंचा सकती है और तुम्हारे सारे मसाइल हल कर सकती है। बोलो कितने में सौदा करते हो। और जब उन्होंने 5 लाख से ज्यादा देने से इनकार किया होगा तो मीर ने कहा होगा कि अच्छा मैं ये टेप शेख के हवाले कर देता हूँ या सिकंदर को दे देता हूँ। इसके बाद वो 10 लाख देने पर भी रजामंद हो गए होंगे और इसके बाद वही हुआ होगा जो दिलावर जैसे लोग कर सकते हैं। उन्होंने तय कर लिया होगा कि जब वो स्पूल टेप इनके हवाले करेगा, उधर दूसरी तरफ उसके बीवी बच्चों को उठवा लिया जाएगा और मीर मोहम्मद के सामने दोनों चीजें रख दी जाएंगी कि ये रहे 10 लाख नकद और ये है तुम्हारी फैमिली, एक चीज ले जाओ। 10 लाख की रकम कम तो नहीं होती। हैरत की बात यह थी कि सौदा अगर तय हो गया था तो खाना तलाशी की नौबत क्यों आई। इस सवाल के कई जवाब मुमकिन थे। मसलन मीर मोहम्मद ने वादा किया कि वो स्पूल लेकर वक्त मुकर्ररा पर फला जगह पहुंच जाएगा। मीर मोहम्मद भी कम होशियार नहीं था। इसने एहतियात के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए किसी वीरान जगह पर टेप इनके हवाले नहीं किया होगा। शायद इसने किसी रेस्टोरेंट का इंतखाब किया होगा और वो मुसल्ला होके भी गया होगा। इसने कबल इस वक्त पहुंच के ये भी देखा होगा कि इसको रकम देने और टेप लेने कौन आता है। वो पुलिस की वर्दी में गया होगा और इसने टेप कहीं रखवा दिया होगा, मसलन रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास या अपने किसी आदमी के पास जो करीब ही मुसल्ला बैठा होगा कि सौदा करने वालों की नीयत में फतूर का एहसास हो, या वो मीर मोहम्मद को टेप समेत ले जाने के मूड में आए तो वो बात किए बगैर निकल जाए, या वो लोग टेप छीनकर रकम अदा किए बगैर जाना चाहें तो ना जा सके। मीर मोहम्मद का साथी इनका रास्ता रोक ले, फिर वर्दी में मलबूस एक पुलिस इंस्पेक्टर इन सबको हैंड्जअप करवा के ले आए और थाने में बंद कर दे। शायद ऐसी ही कोई वजह थी जिसके बायस सौदा ना हो सका, मगर वो लोग मीर मोहम्मद को टेप समेत ले जाने में कामयाब हो गए। मीर मोहम्मद की एहतियाती पेशबंदी नाकाम रही। ऐसी सूरत में मीर मोहम्मद की बजाय इसकी लाश मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा थे। ये भी हो सकता था कि सौदा करने वालों ने रकम अदा कर दी हो, मगर मीर मोहम्मद के दिल में बेईमानी आ गई हो और इसने जो टेप 10 लाख लेकर दिया हो वो असल ना हो, या इसने आधी रकम पेशगी मांगी हो और इसे बाकी आधी ना मिली हो तो इसने टेप देने से इनकार कर दिया हो। तलाशी लेने पर इसके पास से कुछ बरामद ना हुआ हो तो 5 लाख अदा कर देने वालों ने इसे अपने पास रखा हो और अपने आदमी इसके घर से स्पूल टेप लाने के लिए भेजे हों। टेप तो उन्हें नहीं मिला, मगर वो जाते जाते इसके बीवी बच्चों को ले गए ताकि इनको तशद्दुद का निशाना बनाकर मीर से टेप हासिल कर लें।
या फिर सौदा तो इसी तरह हुआ हो जैसे होना चाहिए था, मगर 10 लाख अदा करने वालों ने इस बात की जमानत तलब कर ली हो कि दूसरा टेप नहीं रिकॉर्ड किया गया है। मीर मोहम्मद ने जैसे वीरान मुकाम पर रकम लेने से गुरेज किया होगा, इसने महफूज रास्ता इख्तियार किया होगा। मसलन इसने मुख्तलिफ नामों से बैरेट चेक लिए होंगे, बीवी के नाम से पे ऑर्डर, या इसने कहा होगा कि फलां कोठी खरीद के कागजात मेरी बीवी के नाम करवा दो। खुद बराह रास्त कुछ ना लेने के बहुत से तरीके हैं। 10 लाख देने वालों के लिए ये रकम वापस लेना आसान नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा मीर मोहम्मद को कत्ल कर सकते थे और इसका ख्याल होगा कि टेप हासिल कर लेने के बाद वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शायद इसने धमकी दे दी थी कि मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का ख्याल दिल में मत लाना। मेरे पास इसकी एक नकल महफूज है जो मेरी सबसे बड़ी जमानत है। चुनाचे दिलावर एंड कंपनी ने मीर मोहम्मद को रोक लिया कि तुम्हारी जमानत की ऐसी तैसी, हम देखते हैं वो दूसरा टेप कहाँ है। घर ही एक ऐसी जगह थी जहां वो असल टेप की नकल तलाश कर सकते थे और मेरे इर्द गिर्द फैली हुई तबाही इसका सबूत थी कि वो किसी और मकसद से नहीं आए थे। जवाब तब सवाल सिर्फ ये था कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब रहे और उन्होंने टेप हासिल करके मीर मोहम्मद का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर वो कामयाब नहीं हुए थे तो ये अंदाजा किया जा सकता था कि इस वक्त वो मीर मोहम्मद से पूछ रहे होंगे कि दूसरा टेप कहाँ है, और इससे सही जवाब हासिल करने के लिए इसके बीवी बच्चों पर तशद्दुद का मौसर हरबा इस्तेमाल कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। 10 लाख इतनी आसानी से बहरहाल हासिल नहीं होते और इस धंधे में अपने साथ दूसरों की जिंदगी को दांव पर लगा के जुआ खेलना ही पड़ता है। जुए में जीत का तनासुब ज्यादा रहता है या हार का। यही आदमी की बदबख्ती या खुशकिस्मती कहलाती है। बकौल दीन मोहम्मद के 9 लाख बचाने के लिए 1 लाख में किराए के कातिल हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब इस सवाल का जवाब वक्त ही दे सकता है कि मीर मोहम्मद का और इसके बीवी बच्चों का अंजाम क्या हुआ। चाह कुन राचाह दरपेश, मीर मोहम्मद ने मेरे लिए घड़ा खोदा था। क्या इस घड़े में वो खुद दफन हो गया? अपने बीवी बच्चों और अपने इस मुस्तकबिल समेत जिसे वो नाजायज जराए से हासिल होने वाली दौलत के गरूर में अपनी कुव्वते खरीद में समझता था। इसकी गुलबर्ग की 2 मंजिला कोठी, वो कोठी जो इसने हाल ही में खरीदी थी, इसकी ज़रई ज़मीन, लाखों का बैंक बैलेंस, किसी भी वक्त इस्तीफा देकर बिजनेस करने का प्रोग्राम, इन सब का क्या होगा? सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मीर मोहम्मद की गुनाहों की सजा इसके खानदान को भी मिलेगी। इसके बैंक बैलेंस में 10 लाख का इजाफा हो जाएगा और वो बीवी बच्चों के साथ बखैर आफियत लौट आएगा। या एक कांस्टेबल की आवाज ने मुझे चौंका दिया। आपका फोन है साहब, इसने इकराम शेख को मुखातिब करके कहा। कोई सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। कहता है ये इंतहाई अहम खबर है, किसी अखबार का नुमाइंदा है। तुमने बताया नहीं कि मैं इस वक्त किसी अखबारी नुमाइंदे के साथ सर नहीं खपा सकता। शेख ने हफ्गी से कहा। खैर देखो, इस फ्लैट को ताला लगाओ, किसी चीज को छूना नहीं है और यहाँ से हिलना भी नहीं है। यस सर, कांस्टेबल ने मुर्दा आवाज में कहा। वो पैगाम देने आया था और बिगाड़ में पकड़ा गया था। मीर साहब की फैमिली के अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा, शेख ने कहा। और अगर वो आ जाएं तो इनसे भी कहना है कि पहले मुझसे मिले। कोई और आए तो रोक लो और मुझे इत्तला दो, जबरदस्ती करे तो गोली मार दो। गोली? कांस्टेबल ने वो मुश्किल तमाम कहा। खाली हाथ से? शेख ने अपना रिवॉल्वर इसे दे दिया। ये लो, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक सूरत में करना है, जब कोई तुम पर हमला करे और तुम मुकाबला ना कर सको। परेशान हाल कांस्टेबल को वहीं छोड़ के हम वापस थाने की इमारत में पहुंचे। हशमतान की कुर्सी खाली देखकर एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में आया। हशमतान भी तो जानता है कि मीर ने स्पूल निकाला था। शेख ने छुपकर इसकी बातें सुनी थी, जिनसे साबित होता था कि वो मीर मोहम्मद के साथ बराबर का शरीके जुर्म है और इसका दस्ते रास्त है। इसे यकीनन इल्म होगा कि मीर मोहम्मद किससे सौदा कर रहा है। इस सौदे में हशमतान का हिस्सा भी तो होगा, लेकिन वो जा चुका था।